ڈور بیل بجنے کی آواز پر زویا چونکی اور اکتاہٹ بھرے انداز میں باہر کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کون آ گیا تھا اس وقت۔ شام ہونے کو تھی اور وہ کچن میں ڈنر بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ کچن سے نکل کر باہر کی طرف آئی اور مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس وقت گھر پر وہ اکیلی تھی اور اسے ہی دروازے پر جا کر دیکھنا تھا کہ کون ہے۔ دروازے کے قریب رک اس نے دبی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کیا یہ آزاد فرید کا گھر ہے؟ چند لمحوں کے سکوت کے بعد دروازے کی دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا، جی یہی گھر ہے ان کا۔ آپ کون ہیں؟ کیا کام ہے ان سے؟ آزاد اس کے شوہر کا نام تھا۔ اس کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ بیاہ کر اس گھر آئی تھی جہاں وہ دونوں رہتے تھے۔ چھوٹا سا یہ بنگلہ ان دونوں کے لیے کافی تھا۔ میں اس کا دوست ہوں، ہم کالج میں ساتھ پڑھتے رہے ہیں، فراز نام ہے میرا۔ اس نے کہا تو زویا تذبذب میں پڑ گئی کہ دروازہ کھولے یا نہیں۔ آزاد گھر پر نہیں تھا، دیکھیں میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، بالآخر زویا نے کہا اور چند لمحوں کے توقف کے بعد دروازہ کھول دیا۔ سامنے لمبے قد اور قدرے صاف رنگت کا جاذب نظر نوجوان کاندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ زویا کو اس کا چہرہ شناسا لگا، شاید وہ ان کی شادی میں آیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، شکر ہے دروازہ کھول لیا آپ نے، ورنہ مجھے لگا یہیں سے واپس لوٹا دیں گی مجھے، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر آیا۔ پھر ذرا چونک کر زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں تبدیلی کو زویا نے محسوس کیا اور وہ قدرے بوکھلا گئی۔ اس نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا تھا اور ننگے سر ہی دروازے کی طرف آ گئی تھی۔ اب وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جائیں؟ اب وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ بیٹھ جائیں یہاں، میں آتی ہوں۔ اسے وہیں بٹھا کر وہ اپنے کمرے کی طرف آئی، ایک دوپٹہ اٹھا کر پہنا اور آزاد کو کال ملائی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ آزاد نے کال پک کرنے کے بعد کھردرے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیسے ہیں؟ زویا نے تحمل سے کہا۔ وہ ہمیشہ اس سے تلخ لہجے میں ہی بات کرتا تھا۔ زویا کو نہیں یاد تھا کہ کبھی اس نے نرمی سے بات کی ہو۔ ٹھیک ہوں، کیوں فون کیا ہے تم نے؟ جلدی بتاؤ، میں کام کر رہا ہوں، ٹائم نہیں میرے پاس، وہ اکتائے ہوئے سے انداز میں بولا تھا۔ آپ کے ایک دوست آئے ہیں، فراز پہنچ گیا وہاں؟ آزاد نے اس کی بات کاٹی تھی۔ فون اسے دو، جی ابھی آئے ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، زویا نے قدرے اطمینان سے کہا۔ وہ اس کا دوست ہی تھا اور بات کر کے آیا تھا، میری بات کراؤ اس سے جلدی، آزاد نے کہا تو زویا نے فون لا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے فراز کو تھما دیا۔ وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ لگتا تھا کافی بے تکلفی تھی۔ فراز اسے کئی القابات سے بھی نواز رہا تھا۔ کئی منٹ بات کرنے کے بعد فراز نے فون اس کی طرف واپس بڑھایا۔ وہ صوفے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ زویا نے فون کان سے لگایا۔ سنو، آزاد کہہ رہا تھا، یہ میرا بہت خاص دوست ہے، میں بھی کئی بار ان کے گھر جاتا رہا ہوں، اسے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ یہ شاید کچھ دن یہیں رہے، تم خیال رکھو اس کا، تب تک میں بھی خود کو ایڈجسٹ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، میں ان کے لیے گیسٹ روم کھول دیتی ہوں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ آئیں میں آپ کو روم میں چھوڑ آؤں، اس نے فراز سے کہا جو صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی اگر آپ مجھ جیسے تھکے ہوئے مسافر کو ٹھکانہ دے دیں، اس نے کہا تو زویا مسکرائی۔ آزاد کئی دنوں سے گوجرانوالا گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں بری طرح تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ یا تو ٹی وی دیکھتی رہتی تھی یا گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی، کبھی کبھار تو اکتا کر دیواروں سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ اب وہ آیا تھا تو اس سے بات کر کے اس کی تنہائی تو کم ہو جاتی۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر وہ بھورے رنگ کے کارپٹ پر قدم رکھتی اندر آئی۔ وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ گیسٹ روم درمیانے سائز کا تھا، جس کے ایک طرف ڈبل بیڈ تھا، ساتھ ہی ایک سائیڈ ٹیبل پڑا تھا جس کے اوپر چھوٹی موٹی چیزیں پڑی تھیں۔ سامنے ہی 2 صوفے رکھے ہوئے تھے، ایک کھڑکی تھی جس پر پردے پڑے ہوئے تھے، کمرے کے ایک کونے میں اٹیچ باتھ روم کا چھوٹا سا دروازہ تھا۔ یہ رہا آپ کا روم، آپ اطمینان سے یہاں آرام کریں، ہر چیز یہاں موجود ہے، یہاں پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، وہ اس کی طرف موڑ کر بولی جو روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ زویا نے اسے دیکھا، وہ کافی پرکشش مرد تھا لیکن اس وقت چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ باہر آ گئی اور واپس کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا ذہن ذرا سا الجھ گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے مہمان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ ابھی اس کا ہلکا سا تعارف ہوا تھا اور وہ اس سے زیادہ بات نہیں کر پائی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیوں آیا ہے اور کسی ہوٹل میں کیوں نہیں ٹھہرا۔ اس کی اور آزاد کی دوستی کتنی گہری تھی، اس سے پہلے آزاد کا کوئی دوست ایسے گھر پر نہیں آیا تھا۔ آزاد بہت سخت غیر مرد تھا لیکن آج اس نے خود ہی اسے گھر پر ٹھہرا لیا۔ یقیناً ان کی دوستی خاصی گہری تھی۔
इसने सोचा। शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो वो कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो इसकी पसंद नापसंद जरूरी थी। वो यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर इसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाजा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खुल गया। नीम व दरवाजे से इसकी नज़र अंदर गई। वो बेड पे चित लेटा सो रहा था। इसने कपड़े भी नहीं बदले थे। जुया धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से जरा दूर आकर खड़ी हो गई थी। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था। सीने में हल्का सा इर्तियाज सांसों की आमद व रफत का पता दे रहा था। वो गहरी नींद में था। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे और शर्ट के कई बटन खुले थे। जुया को इसे यूं लेटे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। इसका गुला सूखने लगा था। सिर झटक कर वो जल्दी से बाहर निकल आई। ना जाने कब उसकी आंख खुली थी। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफी थक चुका था। इसके पापा ने यहाँ एक प्लाट लिया था और पेशगी अदायगी कर दी थी, मगर इसमें कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई थीं। इसे इस मसले को निपटाना था। आने से पहले इसने आज़ाद को कॉल की थी और इसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद था, मगर आज़ाद यहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी बीवी थी जिससे वो मिला था और इसे आज़ाद पर रश्क आया था। आज़ाद जैसे मामूली शक्ल वो सूरत के इंसान की बीवी काफ़ी खूबसूरत थी। इसने जुविया को सादा सहेलिये में देखा था, जिसमें वो बेहद खूब रो लगी थी। इसने दोपटा नहीं पहन रखा था और जवान बदन की उठान ने फिराज को चौंका दिया था। इसे यकीन था कि अगर वो बनसनवर जाती तो इससे नजरें हटानी मुश्किल हो जाते। यकीनन इस घर में कुछ दिन उसके सब्र को आजमाने वाले थे। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। कफ के बटन पीछे को अल्टे थे और इसकी मजबूत कलाइयां दिखने लगी थीं। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने इसकी थिकन उतार फेंकी थी और वो बेहद फ्रेश हो गया था। दीवार पर लगी घड़ी 8 बजा रही थी। घर की तमाम लाइट्स ऑन थीं और किचन की तरफ से खुट्टर पट्टर की मुद्हिम आवाजें आ रही थीं। शायद जुविया वही मसरूफ थी। वो नम बालों को तौलिए से खशक करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पर रुक गया। जुया इसकी तरफ पुश्त किए किचन की सिली पर कुछ बना रही थी। दोपटा सर से सुरक कर कंधों पर आया था और अब फर्श को छू रहा था। इसने एप्रन बांध रखा था जिसकी डोरियों ने इसकी नाजुक सी कमर के आखिरी हिस्से को जकड़ रखा था। इसने अपने निचले लब को दांतों में दबाया और किचन में आ गया। वो इसकी आहट पाकर मड़ी थी। उठ गए आप? मुझे लगा अब सुबह मुलाकात होगी आपसे। वो मुस्कुराई। फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए? नहीं, सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की अश्तहा अंगीज खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके रूम खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे, जुया ने कहा। न जाने क्यों इसने नजरें चराई थीं। मेरी पसंद पूछने का क्या फायदा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था तो सो गया। अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो जुया को देखते हुए बोला, जिसने दुपट्टा बेपरवाही से कुंधों पर डाल रखा था और सियाह रेशमी बल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं, वो बोली। ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसा बनाती हैं आप, फिराज ने शरारत से कहा। जुया ने अबरो सिकेड़ कर इसे देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और एप्रन उतार कर खुद भी टेबल की दूसरी साइड पर आ बैठी थी। दरमियान में सिर्फ टेबल हायल थी। वो देखे नीन नक्श वाली लड़की थी। शफाफ रंगत और गुलाबी तराशे हुए होंठ और बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो बोलते वक्त जरा छोटी हो जाती थीं। किचन में काम करने की वजह से इसकी गर्दन पर पसीने की हल्की सी बूंदें अभर आई थीं। वो खाने की तरफ मतवजा थी, लेकिन फिराज की निगाहें गहराई तक जा रही थीं। एक मौके पर इसे लगा जैसे वो भी उसकी नजरों की आवारगी को जान गई है, मगर बनी हुई है। ये इसकी गलत फहमी भी हो सकती थी। वो इसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? इसने पूछा था। फिराज चौंका। कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊं किसी होटल में। वो खाना खाते हुए रिस्पॉन्सिव होकर बोला। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो खुद तन्हाई से तंग आ चुकी थी। कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊं। हाँ, मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने। अब अकेली नहीं। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब आजाद की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए थे शादी के फौरन बाद। इस घर में शिफ्ट हो गए जो आजाद को कंपनी की तरफ से मिला है, लेकिन हम लोग अब इसे किस्तों में खरीद रहे हैं। आधी कीमत अदा की जा चुकी है। वो इसे बताने लगी। फिराज उसकी मुद्भरी आवाज सुनता गया। वो इसके बेहद करीबी दोस्त की बीवी थी, मगर उसके बारे में फिराज की सोच यूं इस तन्हाई में बदलने लगी थी। इसका आज़ाद होना और जवानी इसे बुरी तरह कशिश करने लगे थे और उसकी नज़रें जुविया पर गड़ने लगी थीं। इसका दिल इसके कुर्ब की चाह करने लगा और एक अलग ही ताल पर धड़कने लगा। जुविया ने कपड़े बदले और दरवाज़ा बंद करके बेड पे आ लेटी। बालों को इसने छोटी सी पूनी में कैद कर लिया था।
कुछ देर यूं ही करोटें बदलती रही, मगर नींद का नाम वो निशान न था। जब से आज़ाद गया था वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। इसे डर लगता था तन्हा घर में रहने से। हल्की आहटों पर वो डर के जाग जाती थी। आज़ाद का रवैया इससे हमेशा तज़हीक आमेज रहा था। बहुत कम गुफ्तगू करता था, अजीब मर्दुम बीजार इंसान था। ज़ुविया को नहीं याद था कि कभी उन्होंने लगातार 5 मिनट से ज्यादा बात की हो। ऐसे रात को एक खातून की कॉल आ जाती थी, जिन्हें सुनने के लिए वो छत पर चला जाता था। इसने कई बार ज़ुविया को दब्बे लफ्जों में बावर कराया था कि इस शादी में आज़ाद की मर्जी शामिल न थी। इन गंत रातें ज़ुविया ने रोकर गुजारी थीं, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया था। वो दोनों बस ज़रूरत के तहत ही बात करते थे, लेकिन आज इसके लेटने की वजह अलग थी। फिराज को अपने घर में ठहराकर वो बेचैन हो गई थी। वो इसे निगाहें भर के देखता रहा था। उसके अंदर हलचल सी जागी था। वो इसे मना नहीं कर सकी थी। शायद जो मोहब्बत और आसवदगी इसे अपने शोहर से ना मिल सकी थी, वो किसी और में तलाश करने लगी थी। उसके बारे में सोचते सोचते न जाने कब वो सो गई। फिराज की आंख दबी दबी चीख से खुली थी। वो हड़बड़ाकर जाग गया और अपने हवास बहाल करने लगा। इस लम्हे हल्की सी चीख फिर सुनाई दी थी और ये यकीनन ज़ुविया के कमरे की तरफ से आई थी। वो जल्दी से कंबल परे करके उठा और चप्पल पैरों में पहनकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। इसके बेडरूम के सामने पहुंचकर इसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा बंद था। ज़ुविया, फिराज ने इसे पुकारा था। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? यहाँ कोई है? अंदर से ज़ुविया की दबी हुई सी आवाज आई थी। कहाँ पर? दरवाजा खोलो। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर। इसकी आवाज हल्की सी आई थी। शायद वो कंबल में दबकी हुई थी और बेहद खौफजदा थी। दरवाजा खोलो, मैं देखता हूँ। चंद लम्हे बाद इसने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आया और उसके सहमे हुए चेहरे की तरफ देखा। वो नंगे पांव दरवाजे के करीब खड़ी थी। चेहरा खौफ से पेला पड़ा हुआ था। यहाँ कोई है खिड़की में? वो डरे हुए अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खुल गई, बहुत जोर से। वो आंखों में हिरास लिए बोले जा रही थी। अच्छा, तुम फिक्र न करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना किया। इसका शीशा सही सलामत था और वो खिड़की सिर्फ अंदर से खुलती थी, इसलिए बाहर से इसे तोड़े बगैर खुलना नामुमकिन था। फिर वो कैसे खुल गई? फिराज उलझ गया। तुम इसे वाकई बंद करके सोई थी ना? इसने पूछा। हाँ, मेरी आदत है। मैं दरवाजे, खिड़कियां और लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ। ये किसी ने बाहर से खोला है। वो अब भी जर्द चेहरा लिए कमरे के वस्त में खड़ी थी। मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी, मैंने देखा था। वो बोला। हाँ, मुझे डर लग रहा था, इसलिए रूम की लाइट जलने दी, रहने दी थी। वो खिसियानी हुई सी बोली। फिराज फिर खिड़की की तरफ मतवज्जा हुआ। इसने इसे खोला और बगौर देखा। खिड़की अंदर से ही बंद होती और खुलती थी, लेकिन इसका हैंडल जरा सा ढीला हो गया था। जो हुआ कि झोंकों से हिलता रहा था और बिलाखिर खिड़की खुल गई थी। इसने खिड़की वापस बंद की। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है। तुम इत्मीनान से सो जाओ, रिलैक्स होके। खिड़की हवा से खुल गई थी। हवा से कैसे खुल सकती है? वो बेयकीनी से बोली और खशक होंठों पर जबान फेरी। किसी ने बाहर से खोली थी और वो अब भी बाहर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ। उसके साथ ही उस कमरे में खड़े रह के फिराज को फिर से बेचैनी होने लगी थी। वो खौफजदा सी खड़ी थी। सो जाओ, ठीक है, सुबह बात होगी। मैंने देख लिया है, तुम्हें गलत फहमी हुई थी। वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि वो इसकी राह में हायल हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नींद नहीं आएगी। खौफ जैसे इसकी आंखों में जम गया था। थोड़ी देर यहाँ रह जाएं, या फिर हम ड्राइंग रूम में जाकर बैठते हैं। वो मिल्तजियाना अंदाज में बोली। ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यहीं हूँ। लेट जाओ अपने बेड पर। वो बोला। वो मतवजा अंदाज में बेड की तरफ बढ़ी और बेड का राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वो उसके करीब आ बैठा था। एक ही बस्तर पर बैठकर वो खासे करीब आ गए थे। फराज को इसके चेहरे पर खौफ के अलावा हल्की सी सरखी भी नजर आने लगी। वो चंद लम्हे बाद आहिस्तगी से बेड पे दराज हो गई। कंबल इसने सीने तक ओढ़ लिया था तन्हा। तुम वैसे ही डर गई थी। कोई नहीं है यहाँ, अब सुकून से सो जाओ। वो इसके काफी करीब बैठे बैठे नीम दराज हो गया और अपना हाथ बढ़ाकर ज़ुविया के गाल को नरमी से छुआ, जिसका इसने कोई रद्दामल नहीं दिया, और लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर लें। ज़ुविया की क़रबत इस पे असरअंदाज हो रही थी। दिल में हलचल सी होने लगी थी। ना जाने कब वो सो गई, मगर फिराज वहां से ना उठा। उसके पहलू में मौजूद रहा। इसके सूए चेहरे को निगाहों की आगोश में भरता रहा। रात होले होले सरकती रही। ना जाने कितने लम्हे बीत गए थे। वो कब की सो चुकी थी। वो इसकी सांसों की मध्यम आवाज को सुन पा रहा था और फिराज का दिल जैसे उछलकर हलक में आया था। वो उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया और अपने कमरे में आकर उसने पानी के चंद छींटे अपने तपते हुए चेहरे पर डाले और सोने के लिए लेट गया। वो बहुत देर बाद सो पाया था।
फिराज नाश्ते के बाद जल्द ही आज़ाद के घर से निकल आया था। जुविया से इसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। वो रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। इसका रुख अपने पल्लाट की तरफ था। वो इसके मालिक से मिलने जा रहा था। इसने जेब से फोन निकालकर इसे कॉल मिलाई। हेलो, कौन बोल रहा है? किसी खातून की आवाज आई थी। अंदाज में अजलत थी। उम्र का अंदाजा फिराज ने 35 साल लगाया था। जी, मेरा नाम फिराज दाऊद है। क्या ये इस्लाम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का घर है? इसने कन्फर्म करना चाहा। जी, ये उनका ही घर है, मगर वो इस वक्त घर पर नहीं है, खातून ने तेजी से कहा। फिराज को लगा वो कॉल काटने लगी है। कब तक घर आएंगे वो? उसने जल्दी से पूछा। रात तक फोन करके पता कीजिएगा, खातून ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल काटती, फिराज के कानों में किसी मर्द की दबी दबी आवाज आई थी जो कहीं करीब ही मौजूद था। शायद इस्लाम रहमानी घर पर था और किसी वजह से इससे बात नहीं करना चाहता था। फिराज ने फोन वापस जेब में रखकर चंद लम्हे सोचा और एक टैक्सी रोककर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। इसका घर दरमियाने साइज के एक बंगले में था। फिराज ने मेन गेट पर रुककर घंटी का बटन दबाया, लेकिन घंटी बजने की आवाज नहीं आई थी। शायद वो खराब थी। इसने बड़े से मेन गेट पर दस्तक दी और साइड पर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया था। इसने फिर ज्यादा शिद्दत से दस्तक दी, मगर अंदर सुनाटा छाया हुआ था, जैसे अंदर कोई जी रूह मौजूद ना हो। इसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो जरा सा खुल गया। इसने अंदर हाथ डालकर कुंडी गिरा दी और गेट खोल दिया। अंदर आकर इसने दरवाजा बंद किया और अर्धगर्द निगाह दौड़ाई। लान बेहद खूबसूरत था और बंगला छोटा मगर जदीद तराश खराश का था। वो लान को अबूर करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में कोई न था, मगर साथ के कमरे से दबी दबी आवाजें आ रही थीं। वो मेहतात कदमों से इस जानिब बढ़ा। मैंने खुद दस्तक की आवाज सुनी है सहील, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई दबी दबी सी निस्वानी आवाज आई थी। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, शायद गलत फहमी हुई है तुम्हें जाने मन। यहाँ आओ, छोड़ो सब फिक्र और अंदेशे, अगर कोई बाहर हुआ भी तो चला जाएगा, मर्द ने भारी आवाज में कहा। औरत ने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर उसका जुमला फिराज को सुनाई न दिया। फिराज ने मर्द का चेहरा देखा, जिसे इस जवान साल खूब रो औरत ने सहील कहकर पुकारा था। वो उसके लिए अजनबी था। इसका हाथ दरवाजे पर दस्तक के लिए उठा। फिराज इस दरवाजे के ऐन बाहर खड़ा था, जिसकी दूसरी तरफ खेल खेला जा रहा था, जिसका एक मंजर वो देख चुका था। इसने दस्तक के लिए उठा हुआ अपना हाथ नीचे किया और दब्बे पैरों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ आया और बाहर की तरफ बढ़ा और लंबे कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका काम उसके शोहर से था। वो इससे अपने पल्लाट की डायरेक्टरी लेने आया था ना कि इसकी बीवी से। वो बाहर आया और टैक्सी पकड़कर वापस आजाद के घर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर इसने किराया अदा किया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा जुविया ने खोला था। इसे देखकर वो मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे आप। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, फिराज ने कहा और इसे नजर भर कर देखा। वो शायद शावर लेकर बाहर निकली थी। शफाफ चेहरा मेकअप से आरी होकर भी शादाब सा लग रहा था। घने बालों में हल्की सी नमी जाग रही थी और पानी की कई आवारा बूंदें बालों से निकलकर मरमरे गर्दन पर सफर करती हुई कमीज में जज्ब हो रही थीं। ओ, मतलब काम नहीं हुआ? इसने सर हिलाया। चलें, कोई बात नहीं, कभी तो वो आएगा, वो बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। वो इसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ा था। वो मोरनी की तरह दलक्ष चाल चलती हुई जा रही थी। इस लम्हे इसे आजाद की खुशकिस्मती पे रश्क आया कि इतनी हुसैन बीवी इसे मिली थी। वो ड्राइंग रूम में आ बैठी। फिराज साथ ही बैठा था। मैं तो बोर हो गई सुबह से, वो बैठते हुए बोली थी। फिराज मुस्कुराया। नहीं हुई होगी, तुम्हें अपना मियाँ याद आ रहा होगा। वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला। जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बोर हो रही थी मैं। क्या मतलब तुम्हें शोहर नहीं याद आया? फिराज ने इसे छेड़ा। वो सर्क सी होकर खामोश हुई। वो बेहद खूबसूरत थी और सोफे पर बैठी टांग पे टांग चढ़ाए एक अदा से बैठी थी। तुम दोनों की शादी कैसे हुई जुया? सवाल फिराज के लबों पर मचला था। तुम्हारी और आजाद की शादी कैसे हुई? लो मैरिज थी या अरेंज थी? उनकी मामा मेरी मम्मी की दूर परे की रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था, फिर वो रिश्ता लेकर आ गए और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई, वो बताती रही। आखिर में इसकी आवाज में उदासी सी घल गई। फिराज चौंका था। शायद वो आजाद के साथ शादी पर खुश न थी, या फिर इसे मस कर रही थी, तभी उदास थी। फिराज ने सोचा। वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है, फिराज ने कहा। पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत, वो दबी आवाज में बड़बड़ाई थी, मगर फिराज ने सुन लिया। ऐसी बात क्यों? तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो इसके उदास चेहरे पर नजरें जमा के पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही कहा। वो फीका सा मुस्कुराई। लंच क्या है आपने या नहीं? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। फिराज ने इसे तिरछी नजरों से देखा। बताओ, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? इसने ठहरी हुई मुदहम आवाज में पूछा। क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बता भी दूं तो?
आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते, मैं कुछ देर आराम करूंगी। वो उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। फिराज उसके पीछे आया था कमरे में। वो बेड के किनारे रुककर मड़ी। हो सकता है मैं कुछ कर लूं, फिराज ने इसके सामने खड़े होते हुए कहा। कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने नसीब की खराबी का तावान भरना है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। तुम मुझे बताओ तो सही। वो उसके करीब हुआ और अपने हाथ उसके नाजुक कुंधों पर रख दिए और उन्हें नरमी से दबाया। जुविया ने कहा, मुझे सोना है थोड़ी देर। वो तो तुम नहीं बताओगी मुझे, वो जरा सा और करीब होते हुए बोला। तुम सो नहीं पाओगी, वो भारी सी आवाज में बोला। क्यों? क्योंकि तुम डर जाती हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसका दूसरा पार्ट के लिए कमेंट्स में नेक्स्ट लिख दें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली मज़ेदार स्टोरी के साथ।